கர்த்தர் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर का नाम महिमा हो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த மாலை வேளையில கூட நம்ம ஃபியூச்சர் கேரியர் குறித்து சில क्वेश्चन ஆன்சர் கேட்க இருக்கிறோம். इस साईं के समय पर हम ये जो फ्यूचर कैरियर काउंसलिंग अभी होने वाला है, அது குறித்து சில क्वेश्चन நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. அதுக்கு அந்த ஆன்சரை நம்ம கொடுக்க இருக்கிறோம். उसके बारे में कुछ सवालों हमारे पास पहुंच चुका है. उसके लिए जो सॉल्यूशन अभी बताएंगे. அதுக்கான முதல்ல ஜெபம் பண்ணி நம்ம ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். वो शुरू करने से पहले हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर गीत गाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे. இந்த யூடியூப்ல பார்க்குற அனைவருக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். हमारे बच्चों को भी जो यूट्यूब के द्वारा देखने वाले सबके लिए ये बहुत यूजफुल होगा करके मैं सोचता हूँ. கர்த்தர் தம் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவாராக. परमेश्वर अपना नाम की महिमा ले. எல்லாம் சேர்ந்து கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब मिलकर आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे. பரலோகத்தின் பிதாவே, நல்ல மாலை நன்றி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हे स्वर्गीय पिता, इस साईं के समय के लिए आपका धन्यवाद देते இந்த हैं. நாளிலே உம்முடைய தீர்மானத்தின்படி நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். आज का दिन भी प्रभु आपकी योजना से हम सब मिलकर आए हैं. எங்க பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிச்சு ஜெபிக்கிறோம். हमारा सारे बच्चों का जो फ्यूचर आपका हाथ में है परमेश्वर. எதை படிக்கணும், என்ன செய்ய வேண்டும், தங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கான பிள்ளைகளுக்கு கிருபை தரணுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். क्या स्ट्रीम लेना है, कैसे क्या फ्यूचर कैरियर का कैसे ध्यान करना करके उसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं. கர்த்தருக்கு பயப்படுதே ஞானத்தின் ஆரம்பம்னு சொல்லியிருக்கிறார் ராஜா. जो यहोवा से भय माने वही बुद्धि का मूल है करके तेरा वचन में लिखा है. உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரம் நீ மகிமைப்படுத்தும்படி உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிச்சு सिर्फ ஜெபிக்கிறோம். आपका नाम को ऊंचा रखिए राजा. தொடர்ந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு क्वेश्चन ஆன்சர் கொடுக்கும்போது அந்த பிள்ளையோட தேவை பிரச்சனை இருக்குன்னு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். लगातार प्रभु जो बच्चे सवाल पूछते हैं तब स्टिक आंसर देने के लिए मदद करिए. தேவன் தம் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நாங்கள் அர்ப்பணிச்சு ஜெபிக்கிறோம். सिर्फ परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा रखिए राजा. எல்லா துதிகளும் நமக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம். सारे स्तुति घन महिमा हम आपको देते हैं. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावंद. ஆமென். आमेन. ஒரு பாடலை பாடுவோம். பிரைஸ் லார்ட். ये गीत गाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे. பிரைஸ். எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே, எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே, நான் உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவேன். எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவே, நான் உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவேன். உம்மை போல் ஒரு தேவனை பூமியில் அறிந்து உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. உம்மை போல் ஒரு தேவனை பூமியில் அறிந்து உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. ஆனந்தம் ஆனந்தமே, அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன். ஆனந்தம் ஆனந்தமே, அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே, உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவேன். உயர் அடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்தன் நாமத்தை நம்பிடுவேன். உம்மை அல்லாதி பூமியில் யாரையும் நம்பி உயிருள்ள தெய்வமே நீ. உம்மை அல்லாதி பூமியில் யாரையும் நம்பிட உயிருள்ள தெய்வமே நீ. ஆனந்தம் ஆனந்தமே, அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன். ஆனந்தம் ஆனந்தமே, அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே, எந்தன் சிருஷ்டிகரே, உம்மை நினைத்திடவே தந்த வாலிப நாட்களிலே. எந்தன் சிருஷ்டிகரே, உம்மை நினைத்திடவே
அந்த வாலிப நாட்களிலே இந்த மாய உலகத்தை வெறுத்திட அளித்தீர் பரிசுத்த ஜீவியமே. இந்த மாய உலகத்தை வெறுத்திட அளித்தீர் பரிசுத்த ஜீவியமே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. பொன்வெள்ளியுமோ பெரும் பேர் புகழோ கன ஆஸ்தியும் வீணல்லவோ. பொன்வெள்ளியுமோ பெரும் பேர் புகழோ பண ஆஸ்தியும் வீணல்லவோ. பரலோகத்தின் செல்வமே என்னரும் இயேசு போதும் எனக்கு நீரே. பரலோகத்தின் செல்வமே என்னரும் இயேசு போதும் எனக்கு நீரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. பெற்ற தாயும் என் தந்தையும் மாணவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. பெற்ற தாயும் என் தந்தையும் மாணவரே மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறி நீரோ வாக்கு மாறாதவரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறி நீரோ வாக்கு மாறாதவரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. Praise the Lord. Hallelujah. பிள்ளைங்களப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. अभी बच्चे लोग आके इस सवाल के क्वेश्चंस के बारे में अभी डिस्कशन चलेगा. நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லலாம் பின்னாடி. आप उसको सुन के हमसे आप सब्सक्राइब करके हमसे बात भी कर सकते हैं. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीर्वाद करे. सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिर्शा स्मिरना डैनियल इब्राहिम है और आज हम जो है एक सेशन देखेंगे करियर गाइड के बारे में कि हमें फ्यूचर में किस तरीके का कोर्स करना है, उस कोर्स को करने से किस टाइप की नौकरी हमें मिलेगी, या तो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर क्या हम उस कोर्स को छोड़कर कोई और कोर्स में जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इस बारे में आज हम देखेंगे। तो हम सब जानते हैं जब एक स्टूडेंट जब 10th से 11th क्लास में प्रमोट होता है तो एक स्कूल जो है एक स्टूडेंट को 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देती है। एक होता है साइंस स्ट्रीम, एक होता है कॉमर्स, एक होता है ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स। ये पूरे भारत में होता है कि 3 स्ट्रीम्स में जो है स्टूडेंट को डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन उसके मार्क्स, सेकेंडली हिज इंटरेस्ट। तो या तो उसके मार्क्स अच्छे हों और अगर और उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वो स्ट्रीम दिया जाता है।
तो आज मैं बताती हूँ कि साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट्स एक्चुअली में पढ़ता है। तो मेन सब्जेक्ट होता है मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, जिसमें कुछ स्कूल्स में बायो और इकोनॉमिक्स का ऑप्शन होता है, या बायो और कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन होता है, या बायो या होम साइंस का ऑप्शन होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्कूल्स पे। कुछ स्कूल्स में ऑप्शंस नहीं होता, वो कम्प्लीटली बायोलॉजी ही पढ़ाते हैं, बट कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑप्शंस दिया होता है स्टूडेंट्स के लिए। आज आगे हम देखेंगे कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कॉमर्स में मैथ्स, हम सब जानते हैं कॉमर्स मतलब ही उसमें मैथ्स होता है। उसके अलावा बिजनेस स्टडीज़ होता है, अकाउंटेंसी होती है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस का एक ऑप्शन होता है कुछ स्कूल्स में, और इंग्लिश जो है वो एक और सब्जेक्ट होता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम। आगे हम देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स स्ट्रीम में हम क्या क्या एक्चुअली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिस्ट्री, एक होता है ज्योग्राफी, एक होता है पॉलिटिकल साइंस, एक होता है सोशियोलॉजी, एक सब्जेक्ट होता है हिंदी। कुछ स्कूल्स में हिंदी और संस्कृत का ऑप्शन होता है, कुछ तमिल स्कूल्स में हिंदी और तमिल का ऑप्शन होता है, कुछ पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में हिंदी और मैथमेटिक्स का ऑप्शन होता है। जिस स्कूल में मैथमेटिक्स का ऑप्शन होता है तो उस स्कूल्स में उस स्ट्रीम को आर्ट्स ना बोलकर उस स्ट्रीम को ह्यूमैनिटीज़ बोला जाता है। अगर मैथ्स का ऑप्शन नहीं है तो उस स्ट्रीम को आर्ट्स ही बोला जाता है। आगे मैं आपको ये बताऊँगी कि आर्ट्स स्ट्रीम लेकर आप 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज़ हैं और उससे आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो हम बीए इंग्लिश ऑनर्स बहुत ही वाइड नोन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं इंग्लिश ऑनर्स। तो इंग्लिश ऑनर्स करके या तो स्टूडेंट बीएड करे और टीचर बन जाए, या तो फिर वो बीए के बाद एमए करे, एक मास्टर्स डिग्री करे, फिर एक बीएड करे, उसके बाद वो टीचर बन जाए फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th 10th 11th 12th। तो ये दो तरीके के टीचर्स होते हैं। एक होते हैं जो 8th क्लास तक पढ़ाते हैं, एक होते हैं जो 9th 10th हायर और सेकेंडरी स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन एक होता है। वैसे ही बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, बीए ज्योग्राफी है, बीए हिंदी है। हिंदी आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास 12th में हिंदी हो, सेम एज संस्कृत, तमिल, मैथ्स। इसके अलावा बीए प्रोग्रामिंग का एक कोर्स होता है जो बहुत लोग करते हैं, और इसके अलावा जर्नलिज़म और मास कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास। जब आप जर्नलिज़म या मास कम्युनिकेशन करते हैं तब आप की जो नौकरी जो है, जो जॉब जो है वो एज ए टीवी न्यूज़ रिपोर्टर होती है। या तो स्टूडेंट जो है वो न्यूज़ चैनल में काम कर सकता है, या न्यूज़ पेपर की कंपनीज़ में काम कर सकता है, या एड एजेंसीज़ में काम कर सकता है। इसके अलावा बीबीए का एक ऑप्शन होता है, बट मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि बीबीए जो है वो कॉमर्स के ही बच्चे करें, क्योंकि जब बीबीए हम करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है फिनेंशियल स्टडीज़ का या अकाउंटेंसी का। तो उसमें जो बच्चा है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेगा। तो बेटर है कि कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो बीबीए करे, और उसके बाद अगर चाहे तो वो एमबीए कर सकता है या नौकरी कर सकता है। एक ऑप्शन और होता है बीएससी एचएचए। ये जो ऑप्शन है बीएससी एचएचए का जो करियर है, ये तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे कर सकते हैं। या तो बीएससी एचएचए एज एन बीएससी इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट जो है इसमें इसके बाद एज एन बीएससी एचएचए के बाद या तो मास्टर्स इन एचएचए करे, या वो होटल्स में काम करे, या ही ऑल्सो हैज़ एन ऑप्शन ऑफ डूइंग एमबीए। तो बीएससी एचएचए के बारे में मैं थोड़ा और बता देती हूँ। बीएससी जब आप करते हैं एचएचए में तो उसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है फूड प्रोडक्शन, जिससे बच्चा जो है वो शेफ़ बनता है। अगर बच्चे को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है देन ऑफ कोर्स वो बीएससी एचएचए करे। और एक ऑप्शन होता है हाउसकीपिंग का, एक सब्जेक्ट होता है हाउसकीपिंग का। एक सब्जेक्ट होता है फ्रंट ऑफिस का, जो रिसेप्शनिस्ट एंड ऑल का जो जॉब होता है।
एक और सब्जेक्ट होता है F&B सर्विस का, यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसमें स्टूडेंट जो है वो रेस्टोरेंट्स में एज अ वेटर और एज अ वेट्रेस वो काम करता है। तो ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होता है BSc HHA का। इसके अलावा बच्चा फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकता है। जब स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो इन टेक्सटाइल्स, इन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स या टेलरिंग एंड ऑल, तो बच्चा ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकता है। तो जॉब्स उस स्टूडेंट को मिलता है एक्सपोर्ट हाउसेस में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, टेक्सटाइल कंपनीज़ में, डिज़ाइनर वेयर शोरूम्स में एट्सेट्रा उसको जॉब्स मिलता है एज अ फैशन कंसल्टेंट। स्टूडेंट को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा कि अकॉर्डिंग टू द फैशन जो ड्रेस है वो किस तरीके का होना चाहिए और उसके डिज़ाइंस कैसे हो सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, उस हिसाब से जो है वो एज अ कंसल्टेंट ही कैन वर्क। उसके अलावा ही कैन वर्क एज ए मर्चेंडाइज़र या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर या सेल्स में जा सकता है। सो ये कुछ कोर्सेज हैं आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ कोर्स इसके आगे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मैंने गिने चुने ये मेन कुछ कोर्सेज निकाले हैं जिसमें आज के दिनों में बहुत सारे जो प्रॉफिट है, एज इन बहुत पॉपुलैरिटी जो कोर्सेज गेन कर रहा है वो यही कोर्सेज हैं। आगे मैं बताऊंगी कि कॉमर्स स्ट्रीम में आप क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर योर 12th क्लास। तो आफ्टर 12th आप या तो BA इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, अगेन इंग्लिश तीनों स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है। आप उसके बाद B.Ed कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं फॉर क्लासेस अप टू 8, या आप MA कीजिए, उसके बाद B.Ed कीजिए और टीचर बन जाइए फॉर 9th 10th 11th एंड 12th। इसके अलावा BSc मैथ्स का एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास, अगर उसने मैथ्स 11th और 12th में किया हो तो। और उसके पास BCom ऑनर्स वो स्टूडेंट कर सकता है, जिसके बाद वो MCom कर सकता है या MBA कर सकता है या CA की पढ़ाई के लिए वो तैयारी कर सकता है, जिससे जो जॉब्स जो है वो अकाउंटेंट की जॉब मिलती है या इकोनॉमिस्ट की मिलती है, और द स्टूडेंट कैन इवन बिकम अ लेक्चरर और अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज। इसके अलावा BCom अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, BCom स्टैटिस्टिक्स, BCom इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, BCom इन अकाउंटिंग, BCom अप्लाइड इकोनॉमिक्स, BCom बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकता है। ये जो छोटे छोटे ये BCom के जो कोर्सेज हैं ये सारा एक्चुअली BCom ऑनर्स में कवर हो जाता है एज अ होल पार्ट। इसके अलावा स्टूडेंट जो है BBA कर सकता है, अगेन BBA के बाद वो MBA भी कर सकता है, या BBA के बाद वो डायरेक्ट जॉब में भी जा सकता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास BCA का। सो BCA इज़ बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं इस अगर कंप्यूटर में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, एनिमेशन में अगर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन दे कैन गो फॉर BCA। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब आप BCom इन बैंकिंग एंड फिनेंस करते हैं, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डूइंग ऑफ राइटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, एज इन बैंक के जॉब्स, IBPS का होता है बैंक एग्ज़ाम, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे जो है साइंस स्ट्रीम है। तो साइंस स्ट्रीम के बारे में हमारे बीच में भाई डिमेट्रियस सैम डैनियल हैं, तो वो आपको इसके बारे में और क्लियरली बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं डिमेट्रियस सैम डैनियल आपके सामने साइंस स्ट्रीम के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करने आया हूँ। सो BSc मैथमेटिक्स जो है, जिन बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है वो BSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं। BA इंग्लिश ऑनर्स, जिन लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, तीनों कोर्सेज में से कोई भी कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश तीनों स्ट्रीम्स के लिए है। BSc केमिस्ट्री, BSc फिज़िक्स जो है, ये दोनों साइंस स्ट्रीम के मेन टॉपिक्स में से है। तो अगर आपको BSc केमिस्ट्री या फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो आप BSc केमिस्ट्री, BSc फिज़िक्स परस्यू कर सकते हैं। BSc बॉटनी और जूलॉजी जो है ये रिलेटेड है प्लांट एंड एनिमल के बारे में। तो जिन लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिनके पास PCB है या PCMB है, इसके लिए आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मेन है। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें परस्यू कर सकते हो। BSc लाइफ साइंस, B.Pharm, BSc वायरोलॉजी इम्यूनोलॉजी, BSc नर्सिंग, BDS, MBBS, BSc लैब टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हैं बायोलॉजी के इनमें मेन पार्ट्स में से हैं। अगर आपको ये सारे कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आपके पास बायोलॉजी होना कंपलसरी है। BSc लाइफ साइंस जो है वो बहुत ब्रॉड कोर्स है।
अगर आपको करना है तो इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी है और बॉटनी, जूलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड है। अगर आपको करना है तो इसमें आपके बहुत स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप किसी भी सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो या अपनी एमएससी कर सकते हो। बी फार्म जो है वो जो मेडिसिन्स है उनके बारे में पढ़ाई है। मेडिसिन्स बनाते कैसे हैं, उनमें क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है उनकी, ये सब जो है रिलेटेड है। बीएससी वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी आजकल के टाइम पे बहुत अभी जो डिजीज़ेस नए नए आ रहे हैं इसलिए ये बहुत बूस्ट हो रहा है कि अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आगे जाके बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, एमबीबीएस मेडिकल रिलेटेड है। जिनको भी आपको बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग के लिए 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। बीडीएस, एमबीबीएस के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें नीट का एग्ज़ाम आपको 7/7 12th में ही आपको उसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी जो है, ये तीनों लैब टेक्नोलॉजी है। अगर आपको इंटरेस्ट है, इन सबके अलग अपने अपने फील्ड्स में काम आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। बीएससी फॉरेंसिक साइंस जो है वो डेड बॉडीज़ के रिलेटेड, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स से रिलेटेड है। ये यूजुअली पुलिस फोर्स के साथ काम आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट हो इस कोर्स में तो आप जा सकते हो। बीएससी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है क्योंकि हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट आजकल बहुत ज़रूरत होते हैं। इंजीनियरिंग जो है ये एक और मेन कोर्स है जो साइंस स्ट्रीम के साथ रिलेटेड है। जो इसके लिए आपको जेईई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके मेन और एडवांस 2 होते हैं। उसमें रैंक अच्छी आनी चाहिए तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। उसकी तैयारी आपको 12th के साथ ही साथ करते रहनी पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स और बायोटेक्नोलॉजी ये तीनों रिलेटेड बायोलॉजी से हैं, पर जैसे इनमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, जैसे बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री भी रिलेटेड होगा, बायोफिज़िक्स में फ़िज़िक्स भी होगा। तो अगर आप बायो और फिज़िक्स में अच्छे हो तो आप बायोफिज़िक्स चूज़ कर सकते हो। बीएससी एचएचए जो है, जैसे पहले बताया था, वो हर स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट बीएससी होम साइंस, 12th में बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है होम साइंस का। अगर आपने बीएससी होम साइंस लिया है तो आप ले सकते हैं, उसके परस्यू कर सकते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये भी बहुत आजकल इम्पॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप इसको लेते हो तो आपको वायरसेस और बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ाया जाएगा। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, ये जॉब आप कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे फूड्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप एफसीआई में काम कर सकते हो। ये लोग क्वालिटी देखते हैं खाने की। इंस्पेक्टर्स जो होते हैं क्वालिटी देखते हैं कि और कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है। बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जो भी केमिकल्स बनते हैं, जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, उनके बेस स्टडी है। बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी बीएससी लाइफ साइंस की तरह एक ब्रॉड टॉपिक है। इसमें फॉरेस्ट्री है, पाइसिकल्चर है, मतलब मछलियों के बारे में पढ़ाते हैं। एपीकल्चर है, इसमें बीज के बारे में पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर है और हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ाते हैं। बीएससी मरीन साइंसेस जो है ये अगेन जो ओशंस में पाए जाते हैं एनिमल्स, जो फिशेस पाए जाते हैं, उनके बारे में रिलेटेड स्टडीज़ है। बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको जितने भी शिप्स है, सबमरीन्स है, जो पानी में तैरते हैं, उनके रिलेटेड, उनको चलाने कैसे है, उनको बनाते कैसे हैं, उसके रिलेटेड स्टडीज़ है। आगे मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बता देती हूँ। दीज कॉलेजेस आर इन दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ इन ओवरऑल इन इंडिया। तो डीयू में जो है टोटली 91 कॉलेजेस ग्रुप्ड हैं उसके अंडर। इसके अलावा इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये तीनों जो हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, मानव रचना। ये सब आपको एनसीआर में मिलेगा, या दैट मीन्स ईदर इन नोएडा और इन फरीदाबाद में आपको ये कॉलेजेस जो है ये मिलेगा। इसके अलावा आई ऑल्सो लेट यू नो कि गवर्नमेंट जॉब्स की ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो अगर आपने एक बैचलर डिग्री की है या मास्टर्स की डिग्री की है
इन आर्ट स्ट्रीम या कोई भी स्ट्रीम हो, और आपको अगर IAS IPS या IFS या NDA ये सब करने का अगर इंटरेस्ट है तो एग्ज़ाम आपको देना होता है UPSC का। इसके अलावा हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में TNPSC का एक एग्ज़ाम होता है फॉर द सेम पोस्ट, बट उनका जो जॉब्स जो भी लगता है वो 10 के अंदर ही लगता है। जब हम UPSC की बात करते हैं, सो दिस इज़ ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में आपकी नौकरी कहीं पे भी लग सकती है। इसके अलावा बैंक एग्ज़ाम्स अनदर फेमस एग्ज़ाम्स इन इंडिया, इसके लिए आपको IBPS की एग्ज़ाम देनी होती है। ये अगर आपने MBA किया हो या BBA किया हो या BCom किया हो, और अगर आपके पास 12th में अकाउंटेंसी हो तो आप बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक एग्ज़ाम्स के प्राइवेट एग्ज़ाम्स, प्राइवेट बैंक के भी एग्ज़ाम्स अलग से होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, 12th के बाद अगर डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं आफ्टर 12th, फॉर एग्जांपल पॉलीटेक्निक करते हैं तो वो 3 साल का डिप्लोमा होता है। सो वो बच्चे जो हैं वो 12th के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में अगर जाना हो तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक जॉब पोर्टल है www.indgovtjobs.in, तो इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो भी हैं ये सब आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए स्पेशली मैंने लिस्ट किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर्स, आपको डिग्री होल्डर्स के लिए भी आपको इसी पोर्टल में आपको जॉब्स मिल जाएगा। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी। आजकल के जनरेशन में अभी जो करंट सिनेरियो है उस हिसाब से बैचलर्स के बाद इट इज़ बेटर दैट यू गो एंड डू अ जॉब रैदर दैन आप एक मास्टर्स की डिग्री करें, क्योंकि फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई लेट यू नो, जब आप बैचलर्स की डिग्री करते हैं उसके बाद मास्टर्स की डिग्री करते हैं एंड देन यू गो एंड सर्च फॉर अ जॉब, तो सबसे पहले जो जॉब इंटरव्यूअर है या HR है वो आपसे यही सवाल करता है कि एक्सपीरियंस क्या है। सो इट इज़ बेटर कि आप पहले बैचलर्स की डिग्री करें, 1 साल या 1.5 साल जॉब करें, उसके बाद आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटर्नशिप्स कीजिए, जितना इंटर्नशिप कर सकते हैं उतना इंटर्नशिप कीजिए। naukri.com है, indeed.com, glassdoor.com, इंटर्नशाला, इन सब पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और इंटर्नशिप्स करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपकी वैल्यू जो है इंडस्ट्री में वो बढ़ जाती है, आपको एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। तो दिस विल ऑल एक्चुअली ऐड टू योर रेज्यूमे और योर CV। इसके अलावा आपके जितने भी स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ कीजिए, जैसे MS Excel है, 6 Sigma है, कोडिंग है, शॉर्ट हैंड है। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं, आप इन सबको कीजिए। और व्हेन यू आर एक्चुअली इन योर फाइनल ईयर ऑफ योर डिग्री, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या कोई भी डिग्री हो, ट्राई क्रिएटिंग एन ID इन LinkedIn। बहुत यूज़फुल ऐप होता है जॉब मिलने के लिए। अ लॉट ऑफ HRs एक्चुअली लुक इनटू LinkedIn फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब मिलने के लिए और जॉब ढूंढने के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल सा एक ऐप होता है। तो आप अपने आप को इसमें रजिस्टर कीजिए, एक ID बनाइए LinkedIn में। अच्छा, अब हमें पता है कि पिछले हफ्ते या 1-2 हफ्ते पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ हुई है इंडिया में। सो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023, विच मीन्स कि 2022 अप्रैल से लेकर के बाद ही ये जो है ये इन न्यूज़ आएगा। सो अभी इसके बारे में सोचकर या इससे डरने के लिए कोई वो नहीं है। इसके अलावा इस साल से जो है MPhil ख़त्म हो गया है। सो जो करंट बैच है MPhil का, ये उनका आखिरी बैच है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद इंडिया में MPhil नहीं पढ़ाया जाएगा। सो दैट्स ऑल। आगे कुछ क्वेश्चंस हुए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमने क्वेश्चंस तैयार किया है, तो एक डिस्कशन फोरम होगा। सबको जय मसीह की। अभी तक हमने देखा कि हमने क्या क्या कोर्सेज़ हम कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर क्या बन सकता है, हमें किस टाइप की जॉब्स मिल सकते हैं, ये सब हमने देखा है। इसके अलावा हमारे सभा में से कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ डाउट्स उठाए हैं रिगार्डिंग करियर ऑप्शंस।
तो आज हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। इस डाउट सेशन के अलावा अगर आपके पास कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, कमेंट कीजिए, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं @lahirroyministries@gmail.com पे। विल बी ऑलवेज रेडी टू क्लियर योर डाउट्स। तो माई सेल्फ, मेरा नाम दिर्शा स्मिरना डैनियल इब्राहिम है और ये मेरा भाई डिमेट्रियस सैम डैनियल है। तो हम आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। होप कि ये सेशन जो है वो आपके लिए आशीषित रहे। हाँ, तो आज का जो पहला सवाल है, बीए प्रोग्रामिंग में फ्यूचर है क्या? बीए प्रोग्रामिंग में फ्यूचर, ओके। मैंने यहाँ दिल्ली में देखा है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं दैट इज़ जस्ट पास होते हैं, जिनका सिर्फ 55% ऑफ मार्क्स होता है या 60% ऑफ मार्क्स होता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बीए प्रोग्रामिंग करते हैं, बीए प्रोग्रामिंग ऑप्ट करते हैं। पर्सनली मैं बताना चाहती हूँ कि बीए प्रोग्रामिंग में कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। हाँ, ये कोर्स बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू बीए ऑनर्स, बट बीए प्रोग्रामिंग में जो है ज़्यादा स्कोप नहीं है, फ्यूचर भी ज़्यादा नहीं है। बीए प्रोग्रामिंग इज़ एक्चुअली फॉर वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो तैयार कर रहे हैं एंड सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो बीए प्रोग्रामिंग जो है ये उन बच्चों के लिए सूटेबल है, क्योंकि बीए प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही आसान सा कोर्स है और जल्दी कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं होता इस कोर्स में, इस वजह से बीए प्रोग्रामिंग है। बट as far as your future is concerned, BA programming is not the course actually for you. तो अगला सवाल है, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, इन दोनों में से कौन सा आसान रहेगा? ओके, आसान एज इन कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आसान नहीं होता। इट इज़ एज़ पर योर टेस्ट, एज़ पर योर रिटेंशन पार। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं या जो आप ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं, आप वैसा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कीजिए। सो आई वोंट एक्चुअली रिकमेंड कि पॉलिटिकल साइंस इज़ बेटर दैन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी इज़ बेटर दैन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही आसान है रिटेन करने में। सो डिफ़िकल्टी लेवल इज़ द सेम इन बोथ। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना जो कोर्स है या जो करियर है आप वो डिसाइड कीजिए। तो अगला सवाल जो पूछा गया है, क्या हम आर्ट्स बैकग्राउंड होके कोई साइंस कोर्स कर सकते हैं? ओके, आर्ट्स से साइंस स्ट्रीम बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि आप आर्ट्स में जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स वाली बात है, साइंस के बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सो इट मेक्स नो सेंस कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से साइंस स्ट्रीम में जंप कीजिए। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि कोई भी कॉलेज आपको ये ऑप्शन देगा कि आर्ट्स स्ट्रीम से साइंस स्ट्रीम में जंप करने के लिए। हाँ, बट अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो ऑफ कोर्स यू कैन जंप इनटू कॉमर्स एंड आर्ट्स। अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है यू कैन जंप इनटू आर्ट्स, बट आर्ट्स के बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू कैरी फॉरवर्ड देयर करियर ओनली इन आर्ट्स के कोर्सेज। हाँ, तो अगला सवाल जो पूछा गया है, जेएनएम की क्रेडिबिलिटी क्या है, 12th के बाद कर सकते हैं और कौन से कोर्स के बच्चे कर सकते हैं? ओके, जीएनएम जो है इट इज़ अ नर्सिंग कोर्स। इट इज़ 1 लेवल बिलो बीएससी नर्सिंग। आज के बच्चे कर सकते हैं जीएनएम का कोर्स, कोई डाउट नहीं है। 12th के बाद आप डायरेक्टली जीएनएम कर सकते हैं, बट अभी जो स्टेज है, अभी जो लेवल है, अभी जो ग्रोथ है, उस हिसाब से जीएनएम इज़ वेरी रेयर। बहुत ही कम प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो जीएनएम ऑफ़र करते हैं और बहुत ही कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो जीएनएम नर्सेस को हायर करते हैं। इट इज़ बेटर कि आप बीएससी नर्सिंग कीजिए। ऑफ कोर्स बीएससी नर्सिंग सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं जिनके पास बायो और मैथ्स दोनों हो। और जीएनएम जो है ऑफ कोर्स आपको हार्डवर्क जो है उतना ही करना पड़ता है जितना एक बीएससी नर्स करता है। बोथ मेल एंड फीमेल कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स।
हार्ड वर्क उतना ही होता है, बट सैलरी इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ BSc नर्सिंग. अगर आप BSc नर्स करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बट आई डोंट थिंक GNM के लिए गवर्नमेंट जॉब्स आज के लेवल पे इट इज़ अवेलेबल. हाँ, तो जो अगला सवाल है, BSc इकोनॉमिक्स या BCom इकोनॉमिक्स करने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? ओके, जब आप BSc इकोनॉमिक्स या BCom इकोनॉमिक्स करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके एज अ स्टैटिस्टिक्स को लेकर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोरोना वायरस को ले लेते हैं तो उसमें हम स्टैट्स निकालते हैं कि कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, कितने लोग अफेक्टेड हैं एंड हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कितने लोग क्रिटिकल कंडीशंस में हैं. इन एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. तो ये सारे स्टैट्स जो है ये निकाला जाता है इस जॉब में. सो आई थिंक यही होता है. इकोनॉमिक्स करने के बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यही रह जाती हैं. ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए लिख सकते हैं. अगर आप BCom इकोनॉमिक्स करते हैं, कैन स्टिल अप्लाई फॉर UPSC का एग्ज़ाम देकर आप IAS IPS या IFS भी बन सकते हैं. हाँ, तो जो अगला सवाल है, BCom ऑनर्स या BCom बैंकिंग एंड फिनेंस करने से कौन सा बेटर है टू सिक्योर अ जॉब कि आपको बैंक में एक जॉब मिले? ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट BCom ऑनर्स, ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, द सेम एज BSc लाइफ साइंस इज़ कंसर्न्ड. बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. इसमें बहुत सारे टाइनी चैनल्स हैं जिसके थ्रू आपको जॉब्स मिल सकती है. इफ़ योर फोकस इज़ ऑलरेडी ऑन बैंक्स और आप बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप BCom बैंकिंग करें. बिकॉज़ आपको बहुत डिटेल्ड में आप पढ़ते हैं. वो 3 साल का जो कोर्स होता है, बहुत डिटेल में डिग्री करते हैं और आपको बहुत इंसाइट मिलता है कि बैंक्स में जो है जो वर्किंग है वो होती कैसी है. और आपको इससे एज एन BCom इन बैंकिंग करने से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती है. इवन इफ़ यू डोंट गेट इनटू अ गवर्नमेंट बैंक्स, एज सुन एज यू पास, प्राइवेट बैंक्स में मिलने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है. तो अगला सवाल है, क्या मैं डायरेक्टली 12th के बाद CA की तैयारी कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट. CA करने के लिए यू नीड अ बैचलर्स डिग्री, नॉट इवन अ डिप्लोमा. तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. एंड आई वुड प्रेफर कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसमें आप अकाउंटेंसी ज़रूर पढ़िए. सो इट इज़ बेटर यू गो फॉर BCom ऑनर्स एंड देन डू योर CA. हाँ, तो जो अगला सवाल एक छात्र ने पूछा है कि उसके पास डिप्लोमा है और उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसे बैचलर्स डिग्री करनी पड़ेगी, ज़रूरी है या? ओके, इट इज़ योर विश कि आप डिप्लोमा के बाद एक बैचलर्स की डिग्री करें टू सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब. बट गवर्नमेंट जॉब फॉर डिप्लोमा होल्डर्स भी है. अगर आपने डिप्लोमा 3 साल के लिए किया है या उससे ज़्यादा किया है, फॉर एग्जांपल पॉलीटेक्निक का जो कोर्स होता है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं फॉर डिप्लोमा होल्डर्स. बट अगेन अगर आप एक डिग्री करते हैं, इट इज़ योर विश, आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आप कीजिए. मेक श्योर कि जो आपकी जो डिग्री है इट मैचेस विद योर डिप्लोमा. आप पॉलीटेक्निक के बाद डोंट गो फॉर अ BA डिग्री. इट इज़ बेटर दैट यू गो फॉर अ BSc का डिग्री. सो आई वुड प्रेफर कि हाँ, डिप्लोमा के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, बट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं. हाँ, तो अगला सवाल पूछा गया है कि क्या एक छात्र को उस फील्ड में, उस कोर्स में जाना चाहिए अगर उसके पास उतनी स्किल्स नहीं है, उसके पास उतनी क्षमता नहीं है? ओके, एज इन स्किल्स यू आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, तो जब स्किल्स की बात आती है, यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योर स्किल्स. एंड ये अभी लॉकडाउन का समय है. बहुत ऐसा स्कूल्स और कॉलेजेस है जो अभी तक खुला नहीं है. तो इट इज़ बेटर कि आप घर पे बैठिए. और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं. सो स्टार्ट अपग्रेडिंग योर स्किल्स, बी इट योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, बी इट योर प्रोफिशिएंसी स्किल्स, बी इट कोई भी आपकी स्किल्स जैसे आपके फ्यूचर में जो स्किल्स आपको इनेबल कर सकती है, आपको अपग्रेड करने के लिए जो उत्साह कर सकती है, वैसी स्किल्स को आप चुनिए और अभी से जो है उसकी तैयारी में लगिए. बिकॉज़ अगर आपको इंटरेस्ट है
तो उस स्किल को अपग्रेड करने में या उस स्किल को अपने अंदर लाने में आप अपने आप ही एक इंटरेस्ट उठा लेंगे। सो अगर आपको उस सब्जेक्ट में या उस कोर्स में आपको अगर इंटरेस्ट है और आपके पास अगर आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स नहीं है, सो इट इज़ बेटर कि आप अभी से ही उस स्किल्स को प्रैक्टिस कीजिए, उसकी तैयारी करने अभी से ही लगे, ताकि आपको वो डिज़ायर्ड कोर्स जो है एट द राइट मोमेंट आपको मिल सके। ऑल्सो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंटर्नशाला ऐप है और भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स मिलते हैं, ऑनलाइन साइट्स है, तो आप उसमें जाके आप अपनी प्रेफरेंस के अनुसार आप चूज़ कर सकते हो जो काम करना है। उसमें सैलरी कम होगा पर आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अपने इंटरव्यूज़ में दिखा सकते हो। अच्छा, अब मेरा एक पर्सनल सवाल ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो BCA करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो BSc कंप्यूटर साइंस करते हैं, एंड देर आर सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो BTech इन कंप्यूटर साइंस करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली BCA, BTech या BSc कंप्यूटर साइंस तीनों सिमिलर है कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, बट द थिंग इज़ कि BCA बहुत बेसिक होता है पर उसमें एनिमेशन, ग्राफिक ये सब इन्वॉल्व है। उसमें कोडिंग होता है पर उतना एडवांस नहीं होता, जब तक आप कहीं एडवांस ना कर रहे हो यूजली नहीं होता। और अगर BSc कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें थोड़ा एडवांस कोडिंग होता है, C++ होता है। एंड पर अगर आप BTech की बात करोगे तो उसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और उसमें कोडिंग भी होता है, इंक्लूडेड है, बट थोड़ा और एडवांस्ड होता है, पाइथन होता है, C++ होता है, तो थोड़ा एडवांस्ड है वो। तो इस लेवल्स पे आप अपने आप को देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो। एक सवाल और है कि स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जब साइंस की स्टूडेंट्स को देखते हैं, दे ईदर ऑप्ट कि इंजीनियरिंग करना है या MBBS करना है, तो इसके अलावा क्या और ऑप्शंस हैं साइंस स्ट्रीम में? हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे प्रोफेशनिस्ट बन सकते हो आप, डायलिसिस जैसे लैब टेक्नीशियन था डायलिसिस के, उसमें बन सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी है, नर्सिंग कर सकते हैं, मेल नर्सेस की आजकल बहुत डिमांड है। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जिपमर या एम्स में अलाइड कोर्सेज का देख सकते हो। ओके, तो BSc एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ दिस कोर्स ऑल अबाउट? ये कोर्स है क्या? एंड अभी जो है इंडिया की जो करेंट सिचुएशन है, अगर हम इसको देखते हैं, क्या इसमें स्कोप है BSc एग्रीकल्चर में? तो BSc एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है और अभी आगे बढ़ेगा और पहले से ही बहुत स्कोप है, बट इतना वाइडली इसे लोगों को पता नहीं चलता इस कोर्स के बारे में। BSc एग्रीकल्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सब वो भी बहुत वाइड है। तो उसमें आप बीज के बारे में, जो मधुमक्खी है उसकी रिसर्च करते हैं, मछली में जो मछलियों के बारे में करते हैं, जो खाना जो ग्रेन्स बनता है उनके बारे में करते हैं। तो BSc के बाद आप जितने सारे जो आपने पढ़ा है इससे आप अलग अलग जॉब्स में आपको मिल सकता है। तो आप इवन बोटानिकल गार्डन्स में काम कर सकते हो, वहाँ पे उनके रिसर्च कर सकते हो, टैक्सोनॉमी में काम कर सकते हो, तो उसमें बहुत स्कोप है। ओके, लाइफ साइंस और इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में डिफरेंस क्या है और स्कोप कितना है इन सब का? तो अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी पसंद है तो आप यूजुअली लोग BSc माइक्रोबायोलॉजी करेंगे, और अगर आपको वायरोलॉजी पसंद है तो BSc वायरोलॉजी करेंगे। लाइफ साइंस का ये बेनिफिट है कि अगर आप लाइफ साइंस ऑनर्स करते हो तो उसमें सारे कोर्सेज होते हैं, सारे जो भी कोर्सेस है BSc माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन सब को एक साथ मिला के उसमें पढ़ाया जाता है। तो ऑफ कोर्स BSc लाइफ साइंस टफ है, बट एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग भी है। आप आसानी से कहीं भी, आप अगर आपने BSc लाइफ साइंस कर रखा है, आप नेक्स्ट MSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, क्योंकि आपने BSc में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा होता है। तो अलग इतने सारे फील्ड्स होते हैं, वो ऑब्वियसली आपके स्कोप्स को बहुत बूस्ट करता है। 12th में, एज इन 11th एंड 12th में, इज़ इट नेसेसरी टू ऑप्ट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एज इन PCMB ऑप्ट करना ज़रूरी है क्या? ऑब्वियसली अगर आप साइंस लेते हो तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि आप 12th के बाद क्या करोगे, किस फील्ड में जाओगे।
तो यूजुअली PCM करते हैं जिनको इंजीनियरिंग करना हो या मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या केमिस्ट्री पढ़ाना हो, और PCB वो करते हैं जिनको मेडिकल करना हो या बायोलॉजी रिलेटेड पढ़ाई करनी हो। PCMB अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बट उसमें ये रिस्क है कि मैथ्स मेन सब्जेक्ट होता है, अगर मैथ्स में कम मार्क्स आ गए या बायोलॉजी में कम मार्क्स आ गए तो आपको लाइक फेस करना पड़ेगा अपने 12th में। ऑल्सो गिवन कि जितना रिस्क है उतना अवॉर्डिंग भी है, क्योंकि आपके पास अब डबल स्कोप्स है, लाइक आप मैथ्स रिलेटेड भी जॉब्स कर सकते हो क्योंकि जो वो देता है, और जो बायो रिलेटेड है वो भी कोर्सेज कर सकते हो। ओके, एक सवाल और है कि B.Pharm, M.Pharm और PharmD इन तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है? B.Pharm, M.Pharm, PharmD यूजुअली आजकल वैसे तो लोग ऑप्ट नहीं करते, जिनके पास कम मार्क्स आते हैं वो जाते हैं, बट अभी के सिनेरियो में आई कुड रिकमेंड कि आप जाइए, क्योंकि इन कोर्सेज जो है वो रिलेटेड होते हैं, मेडिसिन के रिलेटेड होते हैं। तो आप तो जानते हो कि आजकल इतने सारे डिसीज़ेस आ रहे हैं, हर 2 महीने में कोई नया आ जाता है, तो इन कोर्सेज में हमेशा एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते रहती है। बहुत सारे बड़े कंपनीज हैं, इन्फोसिस, ये सब हायर करते हैं, और गिवन है ये हमेशा कि हर साल नए नए मेडिसिन आते हैं, पुराने से बढ़िया आते हैं, बेटर आते रहते हैं, तो इन सब की डिमांड हमेशा रहती है। ओके, एक डिग्री होती है, एक बैचलर्स डिग्री होती है इन फूड टेक्नोलॉजी, तो उसका स्कोप क्या है, और बैचलर्स करने के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं इन फूड टेक्नोलॉजी? जस्ट लाइक BSc एग्रीकल्चर, BSc फूड टेक्नोलॉजी भी बहुत कम लोग जानते हैं। BSc फूड टेक्नोलॉजी इज़ अन वेरी गुड जॉब, अगर वेरी गुड कोर्स। अगर इनमें से आपको एक जॉब मिलता है फूड इंस्पेक्टर का, उसमें यूजुअली वो करते क्या है, फूड इंस्पेक्टर काम होता है जो ग्रेन्स आते हैं, जो दाल आती है, चावल आती है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, वो सब देखते हैं, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसको पेस्ट कंट्रोल की वो सड़ ना जाए, कोई चूहा उसे खा ना जाए, इन सब रिलेटेड होता है। FCI बहुत फेमस कंपनी है, इंडिया का गवर्नमेंट है, आप उसमें काम कर सकते हो। ऑल्सो आई वांट टू ऐड BSc लाइफ साइंस के बाद आप FCI का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, तो अगेन अनदर गुड अपॉर्चुनिटी टू चूज़ BSc लाइफ साइंस। ओके, जब हम NDA की बात करते हैं, सो विच स्ट्रीम इज़ एक्चुअली बेटर टू चूज़ NDA, और इज़ इट ओनली एन आर्ट्स रिलेटेड कोर्स? NDA तीनों कोर्सेज कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो आर्ट्स या कॉमर्स से करते हैं उनको सिर्फ आर्मी में जॉब मिलता है NDA करके, उनको एयरफोर्स या नेवी में नहीं मिलेगा। जिन बच्चों के पास फिज़िक्स और मैथ्स है, PCM या PCMB में से जो हैं, वही बच्चे एयरफोर्स या नेवी में जो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए और NDA में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ कैन आई बिकम, मतलब मैं एक प्रोफेसर या लेक्चरर कॉलेज में कैसे बन सकती हूँ? ओके, अब हम जानते हैं कि जो MPhil जो है वो हटा दिया गया है फ्रॉम द एजुकेशन लाइन, तो अब जो है आफ्टर योर मास्टर्स you have to apply, you have to actually go and teach in colleges। तो आप कॉलेजेस में जाके टीच कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने मास्टर्स के बाद, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है तो यू हैव टू गिव एन एग्ज़ाम कॉल्ड UGC नेट, जिसको आप क्लियर करके आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। सेम फॉर टीचर्स के लिए जो होता है जो BA करते हैं या BSc करने के बाद जो B.Ed करते हैं, एंड व्हेन दे वांट टू, जब वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अप्लाई करें, तो एक एग्ज़ाम होता है CTET का एक एग्ज़ाम होता है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद एज अ TGT और एज अ PGT जो है उस लेवल में यू कैन गो एंड टीच इन स्कूल्स। सो ये 2 ऑप्शंस होता है कि लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे, आफ्टर MPhil को हटा देने के बाद। और उसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट में अगर अप्लाई करना है तो आप UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। सो इतना ही सवाल है पूछा गया है हमसे, तो आई होप हमने आपके सारे क्वेश्चंस और आपके सारे डाउट्स जो है वो हमने क्लियर किया हो। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है,
तो आई वुड रेकमेंड एज इन नहीं, बट आई वुड आस्क यू कि आप अपना जो भरोसा जो है वो परमेश्वर पे रखिए। जैसे प्रोवर्ब्स में बोला गया है इन द 3rd chapter कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड इन ऑल योर वेज एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, सबमिट योर सेल्व्स टू द लॉर्ड। तो आप अपने आप को जो है परमेश्वर के हाथों में अर्पण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और ऑफ कोर्स परमेश्वर जो है वो आपको आपका करियर जो है वही डिसाइड करते हैं, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। பிரைஸ்ல கர்த்தர் மகிமைப்படுவதாக. प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। இதுவரைக்கும் நம்முடைய பிள்ளைங்கள் இந்த ஃபியூச்சர் கரியரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி क्वेश्चन ஆன்சர் பதில் சொன்னாங்க. अभी तक हमारे बच्चे लोग ने जो फ्यूचर कैरियर का काउंसलिंग क्लास हुआ है, அதை நீங்கள் இப்போ கேட்டிருப்பீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறோம். ये डिस्कशन को आपने सुना है करके हम विश्वास करते हैं। அது பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு விசுவாசிக்கிறேன். ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा करके मैं विश्वास करता हूँ। இதை குறித்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு தெரிவித்தா நல்லா இருக்குன்னு விசுவாசிக்கிறேன். इसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके हमसे बात भी कर सकते हैं। இன்னும் மேல உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்க வேண்டுமென்றா எங்களுக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்தவும். और भी आपके और कुछ सवाल है तो भी हमसे आप बात कर सकते हैं। நம்ம பிள்ளைகள் கத்த ஆசீர்வாதமா மாற்றி தருவார். हमारे बच्चों को सबको परमेश्वर आशीर्वाद का मूल बनाएगा। தொடர்ந்து ஜெபத்துல இருங்க. लगातार आप प्रार्थना करते எந்த रहिए। ஒரு காரியம் ஜெபத்தோடு செய்யுங்க, கத்த உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. कुछ भी जो काम है आप प्रार्थना के साथ करिए, परमेश्वर आपका संग रहकर जय देगा। முதல்ல இந்த கோர்ஸ் எடுக்கும் அந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும் பயம் இருக்கும் நமக்கு. पहले हमारे अंदर एक डर हो सकता है, मैं कौन सा ग्रुप लूँ, कैसे लूँ करके। நீங்க படிச்ச பிள்ளைங்கிட்ட மேலே இருக்கிறவங்க விசாரிச்சு ஒன்றுக்கு புரிந்து கொள்ளும்போது அது ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். ये आप मतलब जो पहले पढ़े लिखे हुए उस बच्चों से पूछ के मतलब ये डिस्कशन को सुन के आपको और भी डाउट से तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு சொல்லி போய் இங்கே மாட்டிக்கிட வேண்டாம். मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ करूँगा करके या कहीं पर जाके आप टकराओ मत। நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவையாக இருக்கும். हमारे लिए एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். अभी हम प्रार्थना करेंगे। பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த வேளைக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। இம்மட்டுமா இந்த பிள்ளைகள் இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. अभी तक परमेश्वर हमारे बच्चे लोग ने जो डिस्कशन किया है, அங்கே பிள்ளைங்களுக்கு அநேக பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். इसको जो देखने वाला सारे बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल होने के लिए मांगते இன்னும் இந்த हैं। பிள்ளைங்கள் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைய தேவன் அனுகிரகம் பண்ணணுமா और ஜெபிக்கிறோம். भी हमारे बच्चों के जीवन पर परमेश्वर तरक्की होने के लिए हम मांगते हैं। இதுக்கு பெற்றோர்களும் உதவி செய்ய முடியாத கிருபை தரணுமா நாங்கள் इसके लिए ஜெபிக்கிறோம். हमारा माता पिता लोग भी प्रभु प्रार्थना के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए मदद करिए। பிள்ளைகளும் பெற்றோரும் சேர்ந்து காரியங்களை செய்ய தேவன் உதவி செய்வீராக. पेरेंट्स भी बच्चे लोग मिलकर हालेलुया ये काम करने के लिए मदद करिए। தேவனே எங்க பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடையவும் தேவ ராஜ்யத்துக்கும் தேசத்துக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியா இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். पिता परमेश्वर हमारे बच्चों की जीवन पर तरक्की होना है और इसके द्वारा स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तेरे स्वर्ग राज्य में आने के लिए मदद करिए। படிக்கிற பிரயாசத்துல நல்ல முறையில் படிக்கவும் தேவனுக்கு பயந்திருக்கவும் தேவன் கிருபை தர நாங்கள் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். इनकी पढ़ाई में परमेश्वर मेहनत करने के लिए और अच्छा मीठा फल पाने के लिए मदद करिए। தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு உதவியா இருந்த பிள்ளைங்களையும் ஆண்டவர் நீங்க ஆசீர்வதிக்கணுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். प्रोग्राम चलाने के लिए जो मदद किया हर एक बच्चों को प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए। உன் நாமத்தை மாத்திரம் நீ மகிமைப்படுத்தி பெரிய காரியம் செய்வீராக. सिर्फ आपका नाम को ऊंचा करते हुए परमेश्वर बड़ा महान काम करिए। தொடர்ந்து வரும் நாட்களில் இதை விட மேலான காரியங்களை போடவும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आने वाला समय पर प्रभु और अधिक प्रोग्राम कराने के लिए और तेरा नाम को ऊंचा करने के लिए मदद करिए। உன் நாமத்தை மாத்திரம் உயர்த்தி நாங்கள் அர்ப்பணிச்சு ஜெபிக்கிறோம். सिर्फ आपका नाम को हम महिमा देते எல்லா हैं। துதி கனமையும் உமக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம். सारे स्तुति आदर घन महिमा हम आपको देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदावंद ஆமென். आमेन आमेन। ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த பரிசுத்த நாமத்தை நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென் ஆமென், ஆமென் ஆமென். प्रिय दर्शकों, हम विश्वास करते हैं कि ये सभा आपके लिए आशीर्वाद का मूल बना, और ज़्यादा आराधनाओं को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमें lahairoyministries@gmail.com पर मेल कीजिए। हमसे वार्तालाप करने के लिए आप 9717841777 में कॉल कीजिए। प्रभु आपको आशीषित करें।